Hello class 9th, welcome back. Today we are going to start our new poem, and this poem name is A Legend of the Northland. A Legend of the Northland. And this poem is written by Phoebe Cary. So, what is the name of the poetess? This is Phoebe Cary. So, intro of the poet. So this is a brief intro of the poet given here, of the poetess given here. Yes, Phoebe Cary was an American poetess. She born on 4th September 1824 in Mount Healthy, Ohio, near Cincinnati. That's it. And you can see photograph of her. She is Phoebe Cary. Phoebe Cary. And that photograph was found in her house. Yes, so you can see this is a Northland. Yes, what is the Northland? Northland, yes, where the sun didn't reach in the proper way. Yes, and there is just only ice and ice everywhere, and on that place the days are very small and night are so long. So this is Northland. So in this Northland, in this the coldest area of the earth. So now introduction of the poem. A legend of the Northland is based on a story from the Old Testament in the Bible. So a legend of the Northland is based. This poem is based on a story, and that story is taken from the Bible. And what is told in that story, yes, we are going to read in the ballad. In the ballad, it is a ballad. Yes, Phoebe Cary wrote a ballad, and we are reading that ballad, and the name of that ballad is A Legend of the Northland. What is the name of the ballad? This is A Legend of the Northland. So now, what is Phoebe Cary reminds us what happens when we cannot bring ourselves to share with those in need. So what happen when we, हमारे साथ क्या होगा अगर हम किसी जरूरतमंद की हेल्प नहीं करते हैं? तो हमारे साथ क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या घटेगा, वी कांट से, अगर हम किसी जरूरतमंद की हेल्प नहीं करते हैं तो. So, A Legend of the Northland is a ballad. It is a ballad. Yes, what is this ballad? Ballad. These are the types of poems. So, poems are sonnet, elegy, ballad. Okay, so these are the types of ballad. So, what is this ballad? A ballad is a poem. A ballad is a poem narrating a story in a short stanzas. बैलेड एक पोइम होती है जो एक कहानी सुनाती है, छोटे छोटे स्टेंजाज में जो कहानी सुनाती है, बताती है. मीन टू से जिस पोइम में कहानी होती है वो एक बैलेड होती है. सो बैलेड इज सच काइंड ऑफ पोइम कि बैलेड इस तरह की एक पोइम होती है विच टेल्स अस स्टोरी, जो हमें कहानी सुनाती है इन शॉर्ट स्टेंजाज, छोटे छोटे स्टेंजाज में. एंड इन द पोइम ऑल द स्टेंजाज कंप्राइज 4 लाइन्स, और हर एक स्टेंजा की लाइनें 4 होती हैं. इन टोटल देर आर 16 स्टेंजा इन दिस पोइम, और इस पोइम में भी 16 स्टेंजा है, 16 स्टेंजाज हैं. एंड दिस स्टेंजाज विल टेल अस अ स्टोरी, और ये स्टेंजाज, दिस 16 स्टेंजाज आर गोइंग टू टेल, दिस 16 स्टेंजाज आर टेलिंग अस स्टोरी. Ballad are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. जैसे बैलेड्स होते हैं, ये आर ए पार्ट्स, बैलेड्स जो होते हैं वो एक पार्ट होते हैं फोल्क कल्चर, किसी एक स्पेशल कल्चर का, और पॉपुलर कल्चर, और किसी पॉपुलर कल्चर का, एंड आर पास्ड ऑन ऑरली, और ये मौखिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं. सो फोक कल्चर कंप्राइजेज ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरीज विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. Yes, this story is of the Northland area. ये जो कहानी है ये नॉर्थलैंड एरियाज की कहानी है. द एरिया विच इज नियर द नॉर्थ पोल, वो एरिया जो नॉर्थ पोल के पास है. दिस एग्जैक्ट प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड, वहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताया गया, जस्ट नॉर्थलैंड बोला गया है. बट नॉर्थलैंड मीन्स द एरिया
नॉर्थलैंड का मीन क्या है कि एरिया इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो नॉर्थ में बिल्कुल उत्तर में जो होता है ना, जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न मोस्ट या नॉर्दर्न लैंड नियर द नॉर्थ पोल। लीजेंड मीन्स ए हिस्ट्रिकल स्टोरी। लीजेंड मीन क्या होता है? एक ऐतिहासिक कहानी, वन विच इज वेरी ओल्ड, जो बहुत पुरानी होती है, एंड हैज बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास जाती है। So this was the introduction of the poem. Now what is the story? Now we are going to read it. So now it is the summary. So see, you can see a woman here. You can see a woman here. So this poem is a legend about an old lady. So ये जो कहानी है, ये जो legend है, ये एक बूढ़ी औरत की कहानी है, एक old lady की कहानी है। Who angered Saint Peter? Who angered Saint Peter because of her greed? जो अपने लालच, किसके? उस बुढ़िया के लालच की वजह से संत पीटर को नाराज कर देती है, गुस्सा दिला देती है। द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस, और स्टोरी है ये। सो यू कैन सी वीमेन इज हियर एंड दैट वीमेन इज अ ग्रीडी वीमेन। ये जो औरत है, ये जो ग्रीडी है, बड़ी लालची औरत है। ओके, एंड वी कैन सी दिस लेडी इज ग्रीडी लेडी, एंड यस, शी वाज सो ग्रीडी, so greedy. What happened? Why did the son get angry? Yeah, why did the son get angry with the lady? We are going to know. Yes, so one day Saint Peter was preaching around the world and reached the door of a cottage where this woman lived. So one day, एक दिन, Saint Peter was preaching. Preaching mean क्या होता है? What is the mean of preaching? Preaching mean क्या होता है? Preaching mean सत्संग सुनाना होता है। Preach mean क्या होता है? संदेश देना होता है ना। तो अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूम घूम के संत पीटर जो था वो दुनिया को संदेश दे रहा था, प्रीच कर रहा था। एंड रीच द डोर ऑफ ए कॉटेज, और वो घूमता घूमता एक कुटिया के दरवाजे पे पहुंचा। वेयर दिस वीमेन लिव, जहाँ पे वो औरत रहती थी। शी वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन ए हिर्थ। वो जो लेडी थी वो, और जो थी वो केक्स बना रही थी और उनको पका रही थी ऑन ए हिर्थ, एक चूल्हे के ऊपर, एक अंगीठी के ऊपर। सेंट पीटर वॉज फेंटिंग विद हंगर, और सेंट पीटर को बहुत भूख लगी थी। ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम ए पीस ऑफ केक, और उसने उस लेडी से खाने के लिए केक का टुकड़ा मांगा। द केक दैट शी वॉज बेकिंग देन अपीयर टू बी टू बिग। तो वो लेडी जो उस केक को बना रही थी, पका रही थी, उसे वो केक बहुत बड़ा लगा। सो शी डिड नॉट गिव हिम दैट, इसलिए उसने वो बड़ा सा केक उसको नहीं दिया। एंड इंस्टेड सी बेक्ड अनदर स्मॉलर वन, तो उसने एक छोटा सा केक बनाया, उसने एक छोटा केक बनाया उसके लिए। दैट आल्सो अपीयर्ड टू बी बिग, सो सी डिडंट गिव हिम दैट आल्सो, लेकिन दूसरी बार भी उसको वो केक बड़ा लगा, उसने वो भी नहीं उसे दिया। द सेकेंड टाइम सी बेक्ड येट अनदर स्मॉलर केक बट फाउंड इट टू बिग टू गिव अवे। तो फिर उसने फिर से एक केक और बनाया, लेकिन वो भी केक उसे बहुत बड़ा लगा, तो वो भी उसने नहीं दिया। इन द थर्ड अटेम्प्ट सी टुक एन एक्सट्रीमली लिटिल स्क्रैप ऑफ डफ, तो आखिर में उसने तीसरी बार में उसने एक बिल्कुल एक स्क्रैप सा, एक टुकड़ा डफ का लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे सीधा कर दिया। सी हैड इट एज थिन, वो इतना पतला था, एज ए वेफर, जैसे एक वेफर होता है, जैसे कागज होता है, बट वॉज अनेबल टू पार्ट विद दैट ऑल्सो, बट वो भी उसे नहीं देना चाहती थी। दिस एंगर्ड सेंट पीटर अलॉट, और इससे सेंट पीटर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। सी सेड दैट, वो कहता है कि सी वॉज नॉट फिट टू लिव इन ह्यूमन फॉर्म, कि तुम एक इंसान के रूप में जिंदा रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। एंड एंजॉय फूड एंड वार्म, ना ही तुम खाने का मजा ले सकती, ना ही आनंद ले सकती हो। ही कर्स्ड हर, उसने उसे श्राप दिया। एंड ट्रांसफॉर्म हिम इनटू ए वुड पैकर, उसे एक वुड पैकर बना दिया, वुड पैकर बर्ड बना दिया। हु हैड टू बोर ए हार्ड, जो एक हार्ड मीन लकड़ी में जो सुराख करता है, ड्राई वुड टू गेट्स इट्स स्कैंटी फूड। सो सी कैन बी सीन इन द ट्रीज ऑल डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, इसलिए हम उस लेडी को हर रोज देख सकते हैं। किसको? कौन थी वो लेडी? जो एक लालची औरत थी उसको, और वो कटफावड़ा बनती है जो हर रोज किसमें? पेड़ में सुराख करने पे लगी रहती है। So this was the story. What? Yes, a legend of the northern
land.